જે કંઈ લોકોએ મૃત્યુ થયા એને કાલબારાગી સ્થળ પર બેસીને જ પોતાની સહજ ભાવનાથી આપણે મૌન પાડી અને થોડાક સમયમાં આપણે પ્રોગ્રામ ચાલુ કર્યું છે. ઘટના 2002માં બનેલી, પણ એ પછીનો એક ગાળો, એક આખો મંથનનો ગાળો હતો. એક આક્રોશ પણ હતો અને એક દર્દ પણ હતું. આક્રોશ અલગ અલગ રીતે વ્યક્ત થયો હશે, પણ દર્દને અભિવ્યક્તિ કરવા માટે ઘણા કલમવીરોએ પોતાની કલમનો સહારો લીધેલો. એમાં જેમના પ્રકાશન જે કાંતિભાઈ એ વખતે હતા. કાંતિભાઈ આખી એક પુસ્તકોની હારમાળા એ વખતે તૈયાર કરેલી, એ મિત્રો જોઈ શકે છે ત્યાં આગળ. સ્વરૂપબેન માત્ર લેખિકા નહીં, એક્ટિવિસ્ટ અને ઘણું બધું. અને એ એમને જે આક્રોશ હતો એમને 2009માં, એટલે 2002થી 2006માં જે બધું બન્યું એને 2009માં ઉમ્મીદ હતી કોઈ નામે પુસ્તક પ્રગટ કર્યું. 16/4/2009ના ભૂયુત્તરમાં આપણે એનો પરિચય આપેલો. અને પરિચયમાં આપણે એમ એ વખતે મેં અભિવ્યક્ત કરેલું કે આ ગુજરાતની અંદર ગુજરાતીમાં આ પુસ્તક ન હોય કેવી રીતે બની શકે? કારણ કે એમાં તો લખેલું છે કે માત્ર લોકોનું નહીં, ભાષાનું પણ આમાં વિસ્થાપન થયેલું છે. એ ભાષાના વિસ્થાપનને ઘણા વખત પછી મોહનભાઈએ એ ગુજરાતીમાં ફરી પાછું એને ઉતારવા માટે પ્રયત્ન કર્યો અને યજ્ઞ પ્રકાશને એનું પ્રકાશન આજે આપણે લોકાર્પણ પ્રસંગે કરીશું. એટલે હવે આખી આ વ્યાખ્યાનમાળા, વિઠ્ઠલદાસ કોઠારી વ્યાખ્યાનમાળા અને સૌને આવકાર, એ અનામિકભાઈ અહીંયાના ચાન્સેલર છે, વિસ ચાન્સેલર છે, એ આપણને કરશે. અનામિકભાઈ 10 મિનિટ. અનામિકભાઈ અને વિઠ્ઠલદાસ કોઠારી વ્યાખ્યાનમાળામાં વધારેલા મુખ્ય મહેમાન એવા નાસીરાજી, ગુજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપતિ અને અમારા સૌના રાહબર એવા ઈલાબેન, જેમને આ પુસ્તક છે પહેલા રાષ્ટ્રભાષાઓમાં લખ્યું એવા સ્વરૂપબેન, અને એને માતૃભાષામાં અનુવાદ કરનારા મોહનભાઈ, અને અહીં ઉપસ્થિત મંચ ઉપર એવા પ્રકાશભાઈ અને અન્ય. આ કાર્યક્રમનું ઘણા બધા દિવસથી આયોજન ચાલી રહ્યું હતું અને મને કહેવામાં આવ્યું કે આ તારીખે કાર્યક્રમ રાખ્યો છે અને તમારે આવવાનું છે. અને એ પછી નાસીરાજીના પુસ્તકો અને એમના લખાણ વિશે થોડો પરિચય કરાવવા માટે કેટલાક લખાણ મંગાવ્યા. આખા પુસ્તકો તો હું વાંચી શક્યો નથી, કારણ કે છેલ્લા 30-32 વર્ષમાં વધારે સમય છે કેમેસ્ટ્રી અને સંશોધન પાછળ ગાળેલું. પણ વિદ્યાપીઠમાં આવવાથી મને એક ફાયદો એ થયો છે કે દર વૈકલ્પિક દિવસે એકાદ પુસ્તક અથવા તો પુસ્તિકા એ ભેટ સ્વરૂપે આવે છે અને યથાવકાશે એને વાંચવાનો ઉપક્રમ પણ રહ્યો છે. તો મને ખૂબ આનંદ થયો અને નાસીરાજીના કેટલાક લખાણો મેં જોયા
અને પછી મને એમ થયું કે એમના જે લખાણો છે એ અલ્હાબાદની પૃષ્ઠભૂમિમાં, અલ્હાબાદમાં રહીને અને એમની જે શેરીમાં એમણે એમના બાળપણ ગાયેલું છે, જે શાળામાં ભણ્યા, જે મિત્રો અને શેરીનો પરિવેશ, એ જે રીતે એમણે વ્યક્ત કર્યું છે એ જોતા મને એમ લાગે છે કે આપણે બહુ સદભાગી છીએ કે એક સુંદર પુસ્તકનો અનુવાદ અને જેમાં સમકાલીન સંવેદના છે ને જે આપણા બધાની નિસ્બત છે 2002 થી 2015 સુધી દેશનું વાતાવરણ, આપણી ભૂમિકા અને જે સંસ્થામાં બેઠા છે એ સંસ્થાના પાયાના વિચારો. તો હું સૌથી પ્રથમ તો નાસીરાજીને ખૂબ આવકારું છું અને એમણે જે એમના લખાણો દ્વારા, પછી એમણે જે જગ્યાએ પ્રવાસો કર્યા છે એના દ્વારા અને એમણે જે પુસ્તકો આપ્યા છે તે બધું જોતા મને એવું લાગે છે કે આજે વિદ્યાપીઠમાં અત્યારે તો એક કાર્યક્રમ છે જ, પણ સાંજે પણ થોડાક લોકો સાથે એમની એક ગોષ્ઠી પણ છે અને જે લોકોને આમાં રસ હોય એ ગોષ્ઠીમાં પણ આવે. બીજી વાત, સ્વરૂપબેનના પુસ્તક વિશે. પુસ્તક મારા હાથમાં ગુજરાતી અનુવાદ છે એ હજી 2 દિવસ પહેલા જ મારી પાસે આવ્યો. એના એક વ્યક્તિ ચિત્રો હું વાંચી ગયો અને છેલ્લા થોડાક પાનાઓ કદાચ બાકી રહી ગયા છે. પણ બનાસકાંઠા હોય કે પંચમહાલ હોય કે બીજા વિસ્તાર હોય, આદિવાસી વિસ્તાર હોય કે અંતરિયાળ વિસ્તાર હોય, એ વિસ્તારોમાં જે લોકોએ માનવતાની સુવાસ પ્રસારી પોતાના જીવના જોખમે અને ક્યારેક ખૂબ જ મોટા સામે અવરોધ પરિબળોની સામે રહી અને ઝઝૂમીને પોતાના પડોશીઓને, પોતાના લોકોને, પોતાના વતનીઓને જે રીતે એમને બચાવ્યા, એમને માટે સંઘર્ષ કર્યો અને એમાં એક નવી ચેતના જગાડી એને આશ્વસ્ત કર્યા. આ એક કથા છે એ જેમ વાંચતા ને વાંચ્યા પછી આપણને થોડીક શીતળતાનો અનુભવ કરે છે, પણ 90% એમાં વેદનાનો ભાવ આપણને પેદા થાય છે. કારણ કે જે સમાજનું નિર્માણ આઝાદી પછી આપણે ઝંખ્યું હતું એ સમાજનું નિર્માણ આપણે કરી શક્યા નથી અને ક્યાંક વૈચારિક ભૂમિકામાં આપણે ઘણા કાચા રહ્યા અને એ જે વૈચારિક ભૂમિકામાં આપણે કાચા રહ્યા છે એનો અવકાશ છે એ બીજી રીતે પૂરાયો છે. એટલે આ ઘડી છે એ આત્મચિંતનની પણ થઈ, એક સાહિત્યિક કૃતિ તરીકે, એક ઘટના પ્રવાહોના સંદર્ભમાં અને એક વૈશ્વિક ચેતના સાથે એનો અનુબંધ કેવી રીતના રહ્યો છે તે ખૂબ સરસ રીતે સ્વરૂપબેને ઘણું બધું તાટસ્થ્યતાથી લખ્યું છે અને અનુવાદ પણ એટલો સુંદર થયો છે. એટલે આજના આ કાર્યક્રમમાં મને આવવાનો એક તક ઊભી થઈ અને મને બોલવાની તક આપી એટલે મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. મને યાદ છે નાસીરાબેન 2002 અને 2002 થી 2014 રાજકોટમાં અલ્હાબાદના એક કબીર પંથના જે ખૂબ જ મોટા અભ્યાસી ગણાય કબીર પારખ સંસ્થાન, કદાચ ઘણા લોકોએ નામ નહીં સાંભળ્યું હોય પણ 100 થી વધારે પુસ્તકો એમણે બહુ સુંદર પુસ્તકો લખેલા છે. અભિલાષ દાસ, એ અભિલાષ દાસ છે એમનું 2014માં જ એમનું અવસાન થયું, પણ દર વર્ષે રાજકોટની
ગાંધીજી સ્થાપિત રાષ્ટ્રીય શાળામાં એમને 3 દિવસ માટે કબીર સત્સંગ સરિતા અને સર્વધર્મ સંભાવ માટેના કાર્યક્રમમાં અમે એમને બોલાવતા હતા અને એમને બોલાવ્યા પછી 3 દિવસ સુધી એ કાર્યક્રમો ચાલતા હતા અને એ અવિરત રીતે તેમનું અવસાન થયું ત્યાં સુધી ચાલુ રહ્યા હતા. તો આ તકે અલ્હાબાદ, નાસિરાબેન, કબીર પારખ સંસ્થાન અને અભિલાષજી એ બધા સ્મરણો મને દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. વિશેષ તો હું સદરમાં જ્યાં રહ્યો એ સદર છે કેમ્પ વિસ્તાર હતો, ત્યાં બધી જ કોમના લોકો ખૂબ આનંદથી રહેતા હતા અને નાસિરાબેનના જે વર્ણનો મેં થોડાક જોયા અલ્હાબાદની એમની શેરીના, ત્યારે મને એમ લાગે છે કે હું મારા 50 વર્ષ બાદ કરી અને 10 વર્ષના વ્યક્તિ તરીકે પાછો એ મારી શેરીઓમાં હું રખડતો ને ભમતો થયો છું. જે કોઈએ નાસિરાબેનના પુસ્તકો ન વાંચ્યા હોય તો હિન્દી ભાષાના અભ્યાસ તરીકે અને એક આલેખન તરીકે પણ બધાએ જોવા અને સમજવા રહ્યા. આ તકે ઘણા બધા લોકો બોલવાના છે પુસ્તક વિશે અને પુસ્તકના લેખનના સંદર્ભો વિશે, એટલે હું વધારે વાત કહેતો નથી, પણ આપ સૌને આવકારી અને હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું. થેન્ક યુ. અમદાવાદમાં હિન્દી પુસ્તકના લોકાર્પણ તો આપણે ઘણા બધા આમાંના હાજર પણ હશે. ગુજરાતી પુસ્તકના લોકાર્પણ માટે અત્યારે બધાના ટેબલ ઉપર, આસનના ટેબલ ઉપર મૂકેલું છે, તો આપ એને એમાંથી બહાર કાઢીને લોકો સમક્ષ મૂકો. મારા કેટલા જરાક બીજા વાળીઓ નથી. પ્રકાશભાઈ તમે બેસતા નહીં. પુસ્તક વિશે પ્રકાશભાઈ સૌથી પહેલા પ્રકાશ પાડે એવી આશા રાખીએ. જોકે પ્રકાશભાઈને બાઉન્ડ્રીમાં રમવાની ટેવ નથી, એટલે શિક્ષક બહાર જશે તો પણ કેચ કરવા વાળા લોકો છે, ચિંતા ન કરતા. ચાલે છે. મારા નામમાં એવું છે પેલા સંબોધન કરવું જોઈએ, એની પણ કઈ વાંધો નથી. મારા નામમાં જેવું છે કે પડવાની સગવડ છે. अब अपनों से पर्दा क्यों? I think I should switch over to Hindi so as to take Nasiraj in confidence that there is no conspiracy involved. कुछ साल पहले स्वरूपबेन की किताब जब हिंदी में आई तो उसमें उम्मीद शब्द था. मैंने उम्मीद शब्द को ले लिया और जब कहीं प्रतिभाव देने का मौका आया मैंने कहा कि स्वरूपबेन आपने तो लिखा कि उम्मीद होगी कोई, लेकिन मैं आपको सही मायने में कहूँ कि मैं उम्मीद से हूँ. मैं उम्मीद से हूँ. मैं उम्मीद से क्यों हूँ? क्योंकि हमारे बीच स्वरूपबेन और ऐसे सहृदय, संवेदनशील, कर्मशील साथी है जो किसी न किसी वंचित, किसी न किसी त्रस्त और पीड़ित उसके साथ सुख दुख को बांटने को, उसकी बात को समझने के लिए जाते हैं. 2002 में जो हुआ
उसके सब जो पीड़ित कटिंग अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज एंड इन सम इंस्टेंसेस कटिंग अक्रॉस सो कॉल्ड रिलीजियस बॉर्डर्स, स्वरूपबेन ने उनसे मिलना चाहा, उनसे बात की। फ्रेंड्स, टू मी it was nationalism in practice. अब इसको नेशनलिज्म भी मत कहिए, इट्स अ सॉर्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म। ये फेलो फीलिंग, ये कोई राष्ट्रवाद, कोई गर्जन का विषय नहीं है। देश की जो प्रीति वो आप आपके साथी बांधव के सुख दुख को कितना समझते हैं उसमें व्यक्त होती है। ये कैसे होता है? मैं जरा इतिहास में जाकर बात करूं। आप ये समझिए, यंग प्रोफेसर कृपालानी, when गांधी suddenly reached his home और कहा कि मुझे चंपारण जाना है, बताओ चंपारण के प्रश्न क्या है। कृपालानी रिकॉल्स इन हिज ऑटोबायोग्राफी और अपनी आत्मकथा में उस बात को कहते कहते वो क्या कहते हैं, वो यूं ही कह जाते हैं कि हम हमको देशभक्त कहते थे, हम हमको राष्ट्राभिमानी कहते थे, हम हमको फ्रीडम स्ट्रगल वाले कहते थे, लेकिन हमारा देश प्रेम इतना छोटा था कि हमारे कॉलेज और क्लब के बाहर थोड़े मील की दूरी पर गांव में चंपारण के इलाके में जो लोग रहते हैं उनके वास्तविक प्रश्न क्या है, उनका सुख दुख क्या है, वो हमें पता नहीं था। हमारा देश प्रेम हमारी कॉलेज में, हमारी क्लब में और साल में एक बार कांग्रेस के जलसे में खत्म हो जाता था, क्योंकि वैकेशन होता था नाताल का, तो और कोई काम नहीं रहता था, तो देशभक्ति प्रदर्शित करने सालाना जलसे में चले जाते थे। लेकिन वी नेवर रियलाइज कि नियरर हो, पास के मोहल्ले में, दूर के गांव में, पास के गांव में लोग कैसी जिंदगी बसर करते हैं। गुजरात में जब 2002 से हम गुजर रहे थे, काफी लोग हमें और आपको मिले जो कहते थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर 2012 में जब 10 साल की बात हुई तो वही लोग हमें कहने लगे कि अब भूल जाओ, कब तक पुरानी बातें ख्याल में रखेंगे। अरे भाई, जो हुआ ही नहीं था वो भूल कैसे जाए। एक प्रकार के का एमनेसिया था। उस एमनेसिया के बीच, सिलेक्टिव एमनेसिया के बीच स्वरूपबेन का जाना, मिलना, 4-5 साल के बाद आज जीवन क्या है उसका खाका खींचना। मैं इसके साथ एक कंपेनियन वॉल्यूम की तरह इसका भी जिक्र करूंगा। अपनी विद्यापीठ की दामिनी बहन शाह, दामिनी ने जेटवाइजेशन पर थीसिस की। तो ये जो थीसिस की उसमें इतने साल बाद भी जो लोग अपने गांव लौट नहीं सके हैं, अगर लौटे हैं तो गांव के बाहर कॉलोनी में है और गांव में फॉर मिनिमम रीजंस वो जा सकते आ सकते हैं। इस प्रकार की जिंदगी बसर करने का एक चित्र है। और ये सरकारी जो आंकड़े उससे कहीं ज्यादा है, वो दामिनी शाह की स्थल मुलाकात से उसमें बिंबित होता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग अपने यहाँ से विस्थापित हो जाए, फिर पुनर्वसन के दौरान उनका एक नया स्थापन हो और एक प्रकार का विस्थापन चालू रहे, फिर गेटोइजेशन की प्रोसेस को बढ़ावा मिले और भी इश्यूज हो, तो इज दिस अ प्रोसेस टू बिल्ड अ नेशन? इज दिस द प्रोसेस wherein we claim that you are a patriot in practice? तो ये सुख दुख की बातें जानना, समझना और जो सिलेक्टिव एमनेसिया गुजरात के एक बड़े मध्य वर्ग ने एक भूमिका ली है, उसको
तंद्रा से जगाना। आप जोर जोर से गर्जना तो करते, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त। विवेकानंद ने कहा था, बेचारे विवेकानंद बड़ा आदमी आता है, कोटेशन देके जाता है, तो भाई उत्तिष्ठ जागृत, तो ये आप अपने सामने जो दुनिया है उसको जानिए, पढ़िए। जब किताब निकली तो अपने डॉक्टर सुधीर चंद्र, उन्होंने एक कमेंट की थी कि ये गुजरात की बात है, गुजराती लेखिका ने लिखी है लेकिन हिंदी में लिखी है। तो एक मानो एक प्रकार से विस्थापन का ये भी किस्सा है। सर वर्ल्ड ओवर अनेक प्रकार के माइग्रेशंस चल रहे हैं और 21वीं शताब्दी में और भी माइग्रेशंस बढ़ रहे हैं और बढ़ने वाले हैं। तो आपके पुराने जमाने के नेशन के, नेशनल लॉयल्टी के, नेशनल बाउंड्रीज के ख्याल उसको रखना। सर यू हैव टू कट एवरीथिंग, और व्यक्ति का व्यक्ति से, आदमी का आदमी से, मनुष्य का मनुष्य से मिलन, ये अब नई परिभाषा अनिवार्य है। कोई पुराने ख्याल से, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से जो नेशन आया, और आपने कभी चक्रवर्तियों के जरिए जो नेशन का ख्याल इतिहास में रिट्रोस्पेक्टिवली दाखिल किया, वो नहीं चलेगा। यू हैव टू कट अक्रॉस ऑल दिस बैरियर्स, और मनुष्य को मनुष्य के नाते अगर हम और आप स्वीकार नहीं कर सकते। नासिरा जी है, गंगा जमुना जमनी संस्कृति की बात करती है, एक तहजीब के हिसाब से ठीक है और अच्छा ही है। दोआब की इलाके से जो आए, इलाहाबाद से, खैर अकबर इलाहाबादी तो आए ही थे, लेकिन अपने जवाहरलाल जी वो भी इलाहाबाद के थे। इलाहाबाद के जबरूट के बारे में सुना है, लेकिन मैं इलाहाबाद की बात इसलिए कर गया जवाहरलाल जी को याद करके। हालांकि आज ऐसे ऐसे हीरो है कि जिनके हिसाब से नेहरू 0-0 है, तो वो तो होता ही है। ये आपको बच्चों पर तरस खाना, और तो क्या कर सकते हैं। तो 1937 जो नए संविधान, उस वक्त के संविधान के तहत भारत में पहली बार प्रांतिक स्वराज आया, उसके चुनावी कैंपेन में नेहरू सारे भारत में घूम चुके थे। जो आपका बच्चा था, सारे भारत में घूम चुका, एक जगह रात कर देर शाम से पहुंचे जवाहरलाल जी, और भारत माता की जय। कुछ लोग मानते हैं कि कॉपीराइट है, अभी 1990 के बाद, ऐसा नहीं है भाई। तो भारत माता की जय वगैरह उन्होंने सुना, वो भी गाने में जुड़ गए। लेकिन फिर जवाहरलाल जी ने, अब देखिए चुनावी तकरीर थी, लेकिन चुनाव भी लोक शिक्षण तो हो सकता है। चुनावी तकरीर की शुरुआत जवाहरलाल जी ने की कि भाई आपने नारा तो पुकारा, लेकिन भारत माता क्या है, कौन है? तो कोई ना कोई नदी नाम का नाम दिया, हिमालय का, गंगा का, वगैरह वगैरह, तो इलाके का। जवाहरलाल जी ने कहा भाई मैं तो ये कुछ नहीं जानता, मैं तो आपके चेहरे में देखता हूँ, आपके चेहरे पर मुस्कान, भारत माता का स्मित, आपकी आंख में आशा, भारत माता की उम्मीद। तो मेरे ये तो जो कॉन्क्रीट मनुष्य है यहाँ सामने बैठा, मैं, हम और आप सब, वो भारत माता है, कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। तो ये मूर्त मानव्य की ओर जाना, मानव के नाते सोचना और इस प्रकार से आगे बढ़ना, ये हमारा स्वातंत्र संग्राम का एक कॉल है। We had a tryst with destiny and we are still having a tryst with it, और ये tryst में अब उसको नए सिरे से पुनर्व्याख्यायित भी करना चाहे तो करे, नए सिरे से परिभाषित भी करे। एक बात समझ लीजिए, वंचितों के बीच, पीड़ितों के बीच जाना मिलना हमारे और आपके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? मैं बिल्कुल एक स्वार्थी की तरह बात करता हूँ। ये महाभारत में आता है, अब इस जमाने में रामायण महाभारत को कोट करना ज्यादा जरूरी होता है इस दौर में, लेकिन महाभारत में नलाख्यान का उद्गम क्या है? महाभारत में नलाख्यान का उद्गम ये है कि नारद घूमते घूमते, नारद घूमते घूमते जब वह पहुंचे और युधिष्ठिर आदि सब भाइयों को वन में सुख दुख का हाल पूछा, तो युधिष्ठिर ने अपने दुखों का वर्णन किया।
प्रेमानंद के आठ में वर्णन है, तो प्रेमानंद ने उसमें जरा एक प्रकार से ह्यूमर भी जोड़ दिया। प्रेमानंद ने कहा, तो वो गुजराती में बताऊंगा, कितने कितने दुख है, तो प्रेमानंद मेड अ सॉर्ट ऑफ लाइटर नरेशन। प्रेमानंद ने कहा युधिष्ठिर के शब्दों में कि भीम पासे मांगू हूं दादा पानी तो लावे बावड़ियो ताणी। तो बट दैट इज जस्ट अ लाइटर साइड ऑफ इट। वन में दुख झेलते थे, अपने राजपाट से अलग हो गए थे, फिर नारद ने उनके समाधान के लिए कि भाई दुख तो कितने बड़े कैसे कैसे होते, ये नरोपाख्यान उससे आता है कि आप नर दमयंती की कथा सुने, तब आपको ख्याल आएगा कि दुख क्या होते हैं, कैसे कैसे दुख झेलने होते हैं। है ना, कहनी ना पड़िए, शुरू में ही शायद अपने टॉल्स्टॉय साहब कहते हैं कि भाई ये जब सुखी परिवार है उसमें तो क्या है, सब एक सरीके है, खाना पीना और सोना। दुखी परिवार की अपनी अपनी दास्तान है, और ये अपनी अपनी दास्तान, इनसे आप मुखोमुख होते हैं, तब आपको एक नए प्रकार की एक बिरादरी का सुखबोध होता है। रचना और चिंतन जो कैरेक्टर है एक इस दास्तान में, मैं समझता हूं कि लोगों को जो मिला सो मिला, पाठकों को जो मिला सो मिला, लेकिन रचना भी लोगों को मिलते मिलते अपने आप विकसित होती है। किसी भी कर्मशील संवेदनशील भौतिक की गति यही होती है कि आप लोगों से कितने सटते हैं, लोगों से कितने जुड़ते और मिलते हैं। आप आइसोलेशन में नहीं, लेकिन लोगों के साथ अनुबंध में कैसे जीना समझना चाहते हैं। तो इसकी ये दास्तान, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। मोहन भाई को अभिनंदन दूंगा कि आप दाढ़ी से है तो दाढ़ी पीटना का काम आपका चालू ही है, तो आपने अनुवाद अच्छा किया। हालांकि आप जिस ट्रेंड को लिए हुए उसको उसके सामने काफी प्रतिवाद का संभव है, लेकिन हम आपके साथ है, आपके अनुवाद में आपके साथ है। और नासिरा जी आ जाए, हार्दिक આવકાર। સ્વરૂપબેન હવે હિન્દીમાં બોલ્યો એટલે બોલી ચાલુ માં, but one thing I will like to reiterate again and again, it is high time that nationalism is not seen as a sacred copyright thing, that nationalism is better understood in terms of patriotism, and thereby the nation is better defined in terms of the people at large, masses cutting across boundaries। अगर से हम इसमें नहीं जाते हैं तो यही होगा कि तवारीख की, इतिहास की जिस डाल पर हम बैठे हैं उस डाल को काटना हमें काफी पसंद आता है। वंस हेगल सेड कि इतिहास से एक ही बात मैं तो सीखा हूँ कि मनुष्य जाति उसमें से कुछ सीखती नहीं है। धन्यवाद। અકસ્માત જ કહેવાય કે આપણી સાથે આજે જેએનયુમાં કામ કરવાવાળા રહેવાવાળા બે વ્યક્તિ હાજર છે। ઘનશ્યામભાઈ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે દિલ્હીમાં જેએનયુમાં કામ કરેલું છે, પહેલાં પરિચય નહોતો, હવે થશે તો હું કહું ઘનશ્યામભાઈ જેએનયુ વાળી ચલાવો, થોડી નેશનલિઝમની વાત આપણે થોડી કરી। અનામિકભાઈ, મસરાભાઈ, ઈલાબેન, મોહનભાઈ, સ્વરૂપભાઈ, પ્રકાશભાઈ, પારુલભાઈ અને હિરેનભાઈ, સૌ મિત્રો, सबसे पहले करीब 7 साल पहले 28 मार्च 2009 को एक किताब का विमोचन हुआ था, और 7 साल के बाद एक किताब
का गुजराती में विमोचन हुआ। साथ साथ पहले मैंने स्वरूपबेन को अभिनंदन तो दिया था, उनका था, पर वो मैंने उसको टीका भी की थी। और ये रंग भी था कि कोई भी एक्टिविस्ट अपने समाज से कैसे विमुख होकर कुछ सुनता है, नहीं सुनता है, लेकिन हमको यहाँ ही काम करना है। और मुझे याद है कि स्वरूपबेन की बात बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे, इसीलिए मैं आज स्वरूपबेन से जाता हूँ मोहन भाई को धन्यवाद देता हूँ और आभार मानता हूँ कि कम से कम एक किताब गुजराती में 7 साल के बाद भी आ सकी। और मैंने जैसे पढ़ी है, मुझे लगता है कि स्वरूपबेन के साथ जब मैं लिखती तो इतनी सरलता से मोहन भाई ने लिखी वैसे ही लिखी। तो मोहन भाई ने जिस तरह से लिखी है, इतनी सरल भाषा से लिखी हुई है, इसीलिए भी मोहन भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ और हम सब उस टाइम की उम्मीद थी। आज परिस्थिति 2002 से काफी समय दूर आ गए हैं, फिर भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ। शायद हमको ज्यादा सोचना पड़ेगा जब मुझे लगता है। और फिर भी तब भी उम्मीद थी, 2002 में भी मुझे उम्मीद थी और आज भी उम्मीद से हम जीते हैं। ये जो किताब है, एक किताब में स्वरूपबेन ने अलग अलग गांवों में जाके पीड़ितों को मिलकर बात की, उनमें कई बातें आती हैं। एक गांव है उनमें 25 से ज्यादा मुस्लिम्स को मार दिया, उसको कुएं में डाल दिया, डांस दिया। और उनमें जो एक आदिवासी था जिन्होंने उनको इस्तेमाल किया, जो कुछ किया, उनको लगा उन्होंने दिखाया गया तो गाँव में। इस परिस्थिति में गाँव में लोग वापिस आए क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद भी एक किताब में है, एक किताब में आंगन गांव की बात है कि जहाँ 2002 के पहले, कुछ महीने पहले, एक गांव में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते थे, साथ साथ ईद, होली, दिवाली सेलिब्रेट करते थे, एक दूसरे को वहाँ खाना खाते जाते थे। वही गांव में जिस तरह से एक माहौल खड़ा हुआ और हिंदू और मुस्लिम डिवाइड हो गए, मुस्लिम को गांव छोड़ना पड़ा। उनकी भी बात है और वो गांव की ब्याज बीबी ये बात करती है और एक स्टैंड भी लेती है, उन्हें न्याय चाहिए। तो वो जो न्याय चाहिए वो भी हमें एक नई बात, नई उम्मीद दिखाती है। इसमें एक भी बात है कि एक संस्कृत का पंडित मुस्लिम, वो मुस्लिम था इसीलिए उसको उसका घर, उसकी किताबें खत्म कर दी। उसके साथ हमारे पास एक भी बात है कि 2 दोस्त थे, यूनुस और सकराबाई। सकराबाई ने यूनुस को 2002 में कैसे भी उसको प्रोटेक्ट किया, पर बाद में सकराबाई और यूनुस, सकराबाई उसके साथ बात नहीं कर सके। क्यों बात कर सकते थे? बाहर का माहौल भी हो सकता है, उसका दिमाग भी बदल गया, कुछ भी हो सकता है।
तो एक फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडशिप के बाद डिस्टेंस, इनकी बात ही हमें उसके साथ साथ फैजू चाचा की भी बात है कि यहाँ वो फैजू चाचा मुस्लिम बच्चों को कुछ महीने के बाद ले जाते हैं, स्कूल में दाखिल करा के और दाखिल होते हैं, और फैजू चाचा उसके बाद ये बच्चों को खिलाते हैं, रमाते हैं। तो जो फैजू चाचा ने तो सफर किया था वो अभी वापस आ सकते हैं, उसको मिल सकते हैं। टेंशन है फिर भी हो सकता है। और ऐसा बात भी है, एक कुटुंब को एक सब होने के बाद भैंस मिलती है, दूध का व्यापार करने का कुछ आश्वासन पर मिलता है, तो फिर से जीने की कुछ उम्मीद आती है। तो ये सारे अलग अलग किस्म के जो इंसिडेंट हुए हमारे गुजरात में, ये सब बात है। तो हम जो स्वरूपन ने लिखा है कि वो खुला मन से गई। 2005 या 2006 को उन्होंने सोचा ये ऐसा करना चाहिए। तब तक उसका दिमाग और मन तो खिन्न था, विड्रॉल के मूड में था और गुस्से में भी था। और ये किताब पढ़ने के बाद और देखने के बाद स्वरूपबेन को एक उम्मीद, और उम्मीद हमारे समाज में, तो और मैं मानता हूँ कि ये उम्मीद जो लोग पढ़ेंगे ये किताब उनको लगेगा कुछ पॉसिबिलिटी। मैं आशा रखता हूँ कि जैसे मोहन भाई को एक किताब, वो तो पहले स्वरूप को मिलेगी नहीं, ऐसा लिखते। एक किताब उन्होंने हिंदी में पढ़ी और उनके बाद मोहन भाई ने तय किया कि मैं उसको गुजराती करूँ। और मेरी एक उम्मीद है कि जैसा मोहन भाई को हुआ कि उनके 100-200 वाचक होते, उसमें से करीब कम से कम 25 को ऐसा लगेगा जो मोहन भाई को लगा। एम थયું ने મને ખબર નથી કે આટલું બધું થઈ ગયું, આટલું બધું બની ગયું છે મારા ગુજરાતમાં। આ રીતે સૌ નિર્દોષ માણસને આ રીતે રહેશે નહીં, દરબાર વિનાના કહેવાય, કોઈ જ કારણ વિના એવો અધિકાર તમે કોને આપ્યો છે? તમે અમુક કોમના છો, બહુમતીમાં છો, એટલે તો એ લોકો જ્યાં બહુમતીમાં હશે ત્યાં ત્યાં આવો અત્યાચાર થવા માંડશે તો થશે શું મારા દેશમાં? हम में से जो कोई पढ़े, किसी को मैं मानता हूँ कि लोग, और मैं जब गुजरात की बात करता है मुझे 2 पॉइंट, मैं तो लिटरेरी का आदमी नहीं हूँ, मेरा पेशा समाज को अध्ययन करने का है। तो जो लोग जस्ट एज ए लिटरेचर पढ़े और उनमें से कुछ लोग सेंसिटिव हो जाए, तो मैं मानता हूँ कि स्वरूपबेन को बहुत ही खुशी, यही उम्मीद, यही मिशन लिटरेचर वाले का है, एक्टिविस्ट वाला। मेरी एक दूसरी उम्मीद है गुजरात के साहित्यकार, जो साहित्यकार स्वरूपबेन की तरह सोचते हैं, उनको लगता है कि ऐसा कैसा हो सकता है मेरे गुजरात। स्वरूपबेन की किताब में हर जगह पे बार बार एक प्रतीति होती है कि जो कुछ हुआ है 2002 में वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ। और हम सब यहाँ बैठे हुए हम जानते थे ऑल ऑफ अ सडन। कुछ सोसाइटी ने लिखा है कैसे इसका प्लान हुआ, स्वरूपबेन उन्होंने लिखा है आयोजन
ना ये नहीं हो सकता है। 2002 हुआ, लेकिन 1969 में मेरे गुजरात में भी ऐसा ही हुआ। उस टाइम भी प्लान 86 के पहले गुजरात के गांवों में हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। 86 के बाद उसकी शुरुआत राम मंदिर के ब्रिक के कलेक्शन के लिए आदिवासियों को किस तरह से ले गए, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उसको आइडेंटिफाई किया। ये सब थोड़ा हम सोचे तो हमें मेरी उम्र वाले तो देखते ही देखा ही है, लेकिन हम लोगों ने भी देखा 87 ऑनवर्ड्स के गुजरात में हुआ, 92 में सूरत में हुआ, 2002 में पराकाष्ठा है। तो ये प्लानिंग हुआ। मैं मानता हूँ कि कोई भी आदमी और औरत घर के नहीं हो सकते, उनको किस तरह से उसका दिमाग माइंडसेट चेंज किया। तो ये माइंडसेट चेंज करने की जो बात है वो धीरे धीरे हो। हम देखें कि धीरे धीरे, और सिर्फ पॉलिटिशियनों ने नहीं किया, अजान से हम बुद्धिजीवियों ने भी किया, जो साहित्यकार अजान से किया, ऊपर मोटिव्स नहीं। और उसमें जो बात आती है वो हमको हमें लैंग्वेज के लिए हमको इंट्रोगेट करना पड़ेगा। ये सारा गुजरात में ऐसा हो गया है। ये गुजराती लोग कैसे हैं? मुझे लगता है कि गुजराती लोग कौन गुजराती लोग, एक सवाल करना ही पड़ेगा। 1908 में गोवर्धन त्रिपाठी ने लिखा था, गुजराती मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइज। मुझे सवाल होता है कि गुजरात में जो आदिवासी लोग, फिशर्स हो और लोग, वो व्यापारी नहीं। 1908 से जो आर्टिकुलेशन शुरू हुआ, उसको पहले से शुरू हुआ, वो आज भी हम मानते कि गुजरात की संस्कृति दुनिया की संस्कृति। मुझे लगता है कि इस जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द है, उनको फिर से कम कुछ लोगों को चैलेंज करना पड़ेगा, इंट्रोगेट करना पड़ेगा। तो कौन से गुजरात की बात करें? 2002 में भी हमें याद रहना चाहिए कि आप मैपिंग करो तो काफी गुजरात में कुछ नहीं हुआ। तो जो गुजरात में नहीं हुआ था वो गुजरात के पास नहीं था। और एक बात स्वरूप दिखाती है कि हाँ, गुजरात में कुछ लोग प्लान करके अपना एम हासिल करने के लिए उन्होंने प्लानिंग किया, वैसा किया। लेकिन यही गुजरात में कई लोग हैं जिन्होंने कौन है, क्या कास्ट है, मैं हिंदू हूँ और नहीं हूँ, हिंदू का डेफिनेशन कौन सी है, वो बात करने का बावजूद उन्होंने खूब मानवता से उनको बचाया। मैं अहमदाबाद में छायानगर में पार्ट दी, छायानगर में कुछ लोग उन्होंने पार्टिसिपेट किया और यही छायानगर में पार्ट दी। कई डेंजर के बावजूद कुछ कुटुंबों ने मुस्लिम को बचाया। तो हमने हमारा जो अच्छाइयाँ भी है, वो अच्छाइयों को हमें हाईलाइट करना। और इसीलिए कि नहीं मैं भावुक हूँ, इसलिए नहीं, वही हमें उम्मीद है और वही हमें दिखाना है कि पॉसिबल है। और सिर्फ उम्मीद से नहीं होगा, उनको हमें ज्यादा नए ढंग से सोचना पड़ेगा। इसीलिए साहित्यकारों को, सोशल साइंटिस्ट को और हम सबको भी आदिवासी एक मैसेज मिलता है, आदिवासी अच्छे हैं, राजपुर ऐसे हैं,
मुझे लगता है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं, इस तरह से मैं डिस्क्राइब करूँ। मैं कहूँगा कि आदिवासी बचा है। मैं जानता हूँ कि यही आदिवासी इलाकों में, छोटाउदेपुर और में ये आदिवासी ने काम किया। क्यों हुआ आदिवासी, किस तरह से उसका माइंड है, वो 60 ईयर्स आई वुड से मोर देन दैट, जिस तरह से उनका एक हिंदुआइजेशन किया 1992 से 2000 तक सिर्फ डाल में मोर देन 40 कैंपस बिल्ट, एक ही तरह के कैंपस, जहाँ एक डाल में टेम्पल की संस्कृति नहीं थी। तो किस तरह से उनको किस तरह का हिंदुआइज किया गया, ये बात और सवाल हमको करना पड़ेगा, क्योंकि यही सवाल से हम सिर्फ इमोशनली उम्मीद नहीं रखेंगे, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा। और इसीलिए मैं लास्ट बात करना चाहता हूँ कि 2002 के पहले भी कई जगह में, सूरत में हुआ, बॉम्बे में हुआ, आसाम में हुआ, और जितने केसेस पीड़ित लोगों ने जीते, और गुजरात में काफी नहीं जीते, कुछ चंद, लेकिन वो जीत सके हैं क्योंकि जो लोग उनमें काम कर रहे थे उन्होंने मेटिकुलसली काम किया। 92 में से उन्होंने लेसन सीखा, 85 में से सिख विरोधी जो राय थे उनमें से लेसन सीखा, और कुछ लेसन तो काफी कुछ लेसन हमको सीखना है, क्योंकि हम ऐसा लेसन देंगे तो हमें स्ट्रेटेजीज हमारे इंटरवेंशन अलग हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि एक किताब पढ़ने के बाद मुझे तो लगा है कि मुझे मेरी मुख्यमंत्री जो कुछ शब्द यूज करते हैं उनको भी मुझे काफी क्वेश्चन करके करना पड़ेगा। और आज मैंने काफी कहा है, आज तो ऐसा माहौल है कि शुरू में ही मुझे वंदे मातरम से बात करनी पड़ेगी, आज भी तो कल करेंगे। उस माहौल में हमें कम से कम हिंदू संस्कृति क्या है उनका भी इंट्रोडक्शन है। पार्लियामेंट में एजुकेशन मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर, अब तो एजुकेशन नहीं कहते, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर वैशासन की बात थी, और हमें लगेगा कि इसमें नहीं, दुर्गा माता के लिए इन लोगों ने बात की, क्या बात। लेकिन इस समाज में कई लोग सदियों से मानते आए हैं कि वैशासन का वध दुर्गा है, और ये सब मिथिकल है, एक्चुअल नहीं है, मिथिकल है। एक तरह से एक मिथ है, दूसरे से दूसरा मिथ। वो मानते हैं कि दुर्गा ने उनका वध कपट से किया है, और हमें वहाँ तो 1 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा रहना है। तो ये सब मेरे कल्चर के बाद उनके तरह का टॉलरेंस हमको आगे ले जाएगा, हमें नई समझ मिलेगी हमें संस्कृति। और एक जिम्मेवारी स्वरूप के साथ साथ यंग सोसाइटी और यंग राइटर्स की है, जितना हम कर सकेंगे इतना हमें ज़्यादा है कि नया समाज बना सकें। फिर से मैं विद्यापीठ का दर्शन संस्था का मैं आभार मानता हूँ मुझे आपके साथ आने का और बात करने का मौका। ગુજરાતમાં બહુ ઓછા મિત્રો છે કે જે ગુજરાતના પ્રશ્નોને સામાજિક સંદર્ભમાં, આર્થિક સંદર્ભમાં અને વ્યાપાર સંદર્ભમાં વિચારવાવાળા છે। એમાંના ઘનશ્યામભાઈ છે। ઘનશ્યામભાઈ 2002ની ઘટના પછી ઘણા બધા રિપોર્ટ તૈયાર થયા એ ઘટનાને આજુબાજુમાં, પણ મોટાભાગના અંગ્રેજીમાં। હવે બીજો એક દોર શરૂ થયો કે જે લીગલ બેટલમાં એના જે રિપોર્ટ એની આજુબાજુ લખવાવાળા એ બધા પણ અંગ્રેજીમાં આવે। લગભગ થોકડો કરું તો લગભગ આટલો કમસે કમ મારી પાસે જેટલી થયું છે। તો આ બધાનું ચયન પચન કરીને સારું એવું ગુજરાતીમાં મુકાવવું જોઈએ,
યજ્ઞ પ્રકાશનની કેપેસિટી તો આપ સૌ જાણો છો, પણ આવું જો કોઈની તૈયારી હોય તો અમે એ પ્રક્રિયાને આગળ ચલાવવા તૈયાર છીએ. પ્રકાશભાઈ અને ઘનશ્યામભાઈ પુસ્તક વિશે વાત કરી. હવે પુસ્તક સાથે સીધા સંકળાયેલા ચિંતનમાં, મંથનમાં એવી એક એક વ્યક્તિને આપણે